Good afternoon, class. Good afternoon, sir. So, class, today we are going to see the implementation of SAT. Okay, SAT का implementation देखेंगे, as well as we are going to discuss list, creating list using our custom class. Custom class means user defined class. हम एक student class की list बना के देखेंगे और एक set बना के देखेंगे. Okay, and we'll try to implement some of the method of SAT class. Okay, so this we are going to discuss. But I'll try to improve that thing. Okay, I'll try to improve that particular thing. कि भैया आवाज. So right now, Yogesh, can you confirm if the voice is proper, the volume is okay? Okay. Yes, sir. नहीं वो क्या हेडफोन मैंने चेंज किए हैं. माय माइक वाज नॉट वर्किंग. द लास्ट माइक लास्ट हेडफोन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो इस कारण से. ओके, चलें तो गाइस वी विल स्टार्ट. लाइक देयर आर लेस पार्टिसिपेंट्स. आई डू नॉट वांट टू वेट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ big like lengthy lecture. Lengthy in a sense 45 minutes around will end up. But the thing is you have to be very careful during the implementation. You have to grasp all the thing which I am letting you know. Okay, because this custom class this custom class is the key. This custom class, that is the user defined implementation, is the key. हम इंटीजर और स्ट्रिंग की लिस्ट बना लेंगे, दैट इज नो इश्यूज, क्योंकि वो इनबिल्ट क्लासेस हैं. बट हम जब कस्टम क्लास का सेट या लिस्ट बनाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं. उन प्रॉब्लम को हमको विजुलाइज करना है. ठीक है, so we'll start with the implementation. We'll create a new project and name this project 2G set demo. Okay, so class, we got our project. Now in our project what we are going to do, I'm going to create a package and I'm naming it set. Okay, so now in this set what we are going to do, demonstrate the use of set. Okay, so we are creating a class set demo. So what we are going to do in this class, so यहाँ क्या करने वाले हैं हम, creating a set which holds integer objects. Okay, integer objects के लिए हम एक set बनाने वाले हैं and will explore some methods of hasset class. Okay, hasset class के कुछ methods को हम क्या करेंगे, explore करेंगे. Hasset is the concrete implementation of set interface. Hasset is the concrete implementation of set interface. हम हमारा सारा कोड मेन के अंदर लिखेंगे भैया. हम हमारा सारा कोड क्या करेंगे, मेन के अंदर लिखेंगे. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल डू, वी विल क्रिएट अ सेट. ओके, तो सेट क्रिएट करने के दो तरीके, आइदर यू कैन यूज द रेफरेंस ऑफ सेट इंटरफेस और यू कैन यूज द रेफरेंस ऑफ हैश सेट. The usual way is to use the reference. The usual way is to use the reference of set interface. Set interface कहाँ से मिलता है भैया, java dot util से. सारे कलेक्शन के जो इंटरफेसेस और क्लासेस हैं वो कहाँ पे स्टोर हैं, java dot util. ओके, सेट मिल गया. अब सेट को हमको बताना है कि किस टाइप का सेट होगा. दिस विल कैरी इंटीजर ऑब्जेक्ट्स. दिस विल कैरी इंटीजर. तो हमने टाइप बता दिया कि भैया इंटीजर ऑब्जेक्ट रहेंगे. हमने बोला सेट, हमने बोला न्यू हैश सेट, क्योंकि हैश सेट कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन है. सो नाउ आई हैव क्रिएटेड दिस सेट. तो इसकी इनिशियल कैपेसिटी क्या होगी भैया बताइए. इसकी इनिशियल कैपेसिटी क्या होगी, 16 एलिमेंट. एंड व्हाट विल बी द डिफॉल्ट लोड फैक्टर, the default load factor will be 0.75. okay, 0.75. so I hope that is clear. Now what I am going to do, I am adding some element. Okay,
To add elements, what we will do, we will use the add method. तो set का रेफरेंस लिया, set dot add, और एक एलिमेंट पास कर दिया, हमने बोल दिया कि 10 एक एलिमेंट है। अब ये देखिए 10 तो प्रिमिटिव वैल्यू, वो इंटीजर में अपने आप कन्वर्ट कैसे हो जाएगी ऑब्जेक्ट में? So the process of converting an primitive type to its object type automatically is known as autoboxing. हमने क्या कर दिया, रैपर क्लास को यूज किया, रैपर क्लास में अपने आप कन्वर्ट हो गया है। नाउ दिस ऐड मेथड एज एन रिटर्न टाइप बूलियन, तो ये बताएगा अगर एलिमेंट ऐड हो गया है तो ट्रू, नहीं हुआ है तो फॉल्स। तो हम इस स्टेटमेंट को एस आउट के अंदर लिखेंगे, और हमें मिल गया कि 10 ऐड हो गया है। Now what we'll do, we will try to add one more element, set dot add, and this time we are going to add 20. Okay, so 10 भी ऐड हो जाएगा, 20 भी ऐड हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, trying to add duplicate, एलिमेंट। ओके, क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, आपने क्या सेंड किया है बेटा? सर मैंने कोड सेंड किया है, इसी के ऊपर किया है, एरे लिस्ट सेट के ऊपर ही है। वो हुआ था, उसमें कुछ गलती आ रही है सर, एक बार आप देख लीजिए। ओके, इसमें जो रिमूव का वो जो है वो काम नहीं कर रहा है। वेट अ मिनट। रिमूव बाय ऑब्जेक्ट, ओके, AR डॉट रिमूव एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ये किस में रिमूव कर रहे हो आप? एरे लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की, ओके AR। रिमूव शुड वर्क। चलो बेटा, ये कोड मैं क्या करता हूँ, सेशन के बाद आपको ये कोड एक्सप्लोर करके देखता हूँ, है ना। मेरे हिसाब से तो ये रिमूव काम करना चाहिए। यस सर। एरे लिस्ट है तो रिमूव बाय इंडेक्स, रिमूव बाय ऑब्जेक्ट दोनों होगा, है ना। यस सर। ओके, तो उस कारण से है यहाँ पे। और क्या दे रहा है, यूज जावा यूटिलिटी लेटर डॉट रिमूव AR। यहाँ पे क्या दे रहा है, AR तो लिस्ट है आपकी। बेटा हैव टू चेक किए क्यों एरर दे रहा है यस सर। अनसपोर्टेड ऑपरेशन का? आपको जावा डॉट लैंग किस में दे रहा है, मेन थ्रेड में, रिमूव में दे रहा है। लाइन नंबर 15 के कारण ही आ रहा है। हैव टू चेक किए किस कारण से एरर दे रहा है, क्योंकि एरर लिस्ट पे तो ये चलेगा रिमूव मेथड। ओके, यस सर। यस सर। ओके, चले भैया, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे सेट पे हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सेट के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं डुप्लीकेट आइटम को ऐड करने की। तो हमने बोला सेट डॉट ऐड 10। ओके, तो ये डुप्लीकेट आइटम है। तो देखिए, पहला वाला हमको आउटपुट देगा ट्रू, दूसरा वाला आउटपुट देगा ट्रू, तीसरा वाला आउटपुट देगा फॉल्स। और अब हम क्या करते हैं, हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंटिंग सेट। हम हमारे सेट को प्रिंट कर लेते हैं एस आउट। जब हमको प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ प्रिंट करना है, तो हम सिस्टम डॉट आउट में लिख देते हैं सेट का नाम। ठीक है भैया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हमने लिख दिया सेट का नाम। तो ये क्या कर देगा, सेट को प्रिंट कर देगा। चलिए इस कोड का आउटपुट देखते हैं एक बार। सी, देखिए, इस आउटपुट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, कि ये पहला वाला 10 था वो तो जुड़ गया भैया, फिर 20 था वो भी जुड़ गया, फिर जो दोबारा 10 आया वो क्या था, डुप्लीकेट, तो नहीं जुड़ा, तो फॉल्स मिल गया। अब देखिए, पहले मैंने 10 ऐड किया था, फिर 20, लेकिन ऑर्डर क्या आया, 20 पहले 10। तो स्पेसिफिक ऑर्डर भी नहीं आता, इंसर्शन ऑर्डर भी नहीं आता है। ओके, इटरेटर को जो वैल्यू मिलेगी उस ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये तो हो गया भैया डुप्लीकेट वैल्यू के साथ ऐड करके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड सम मोर एलिमेंट एस आउट set dot, instead of use, okay, add, I will add 5
s out set dot add, I will add 18 and I need one more element, s out set dot add, I will use 53। ठीक है भैया, ये तो मेरे एलिमेंट ऐड हो गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ट्रैवर्स करना चाहता हूँ भैया, है ना, क्या करना चाहता हूँ, लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहता हूँ, है ना। ट्रैवर्सिंग मतलब प्रोसेस, हर एक एलिमेंट पे एक बार विजिट करके। तो मेरे पास दो चॉइस है, यूजिंग फॉर ईच लूप, यूजिंग फॉर ईच लूप। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट के सारे एलिमेंट का क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं। चलिए सम करना है तो मैं पहले एक सम बना लूं, इंट सम इक्वल्स टू 0। देखो ट्रैवर्सिंग करने का मतलब हर एक एलिमेंट पे एक बार जाना। मैं डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकता था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, एज वेल एज ट्रैवर्स भी करूंगा, एज वेल एज ट्रैवर्स भी करूंगा। क्या यूज करूंगा बेटा मैं, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि भैया ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आ जाएगी इंटीजर एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट, सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट में हमारा सेट का एक एक एलिमेंट हर इटरेशन पे आते जाएगा। हमें नहीं मालूम है पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, हमने क्या बोला, सम इक्वल्स टू सम प्लस एलिमेंट, डन, सम मिल जाएगा। ऐसा आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, क्या कर देंगे भैया, एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। एलिमेंट प्रिंट करने के बाद कॉमा सेपरेटेड स्पेस ले लेंगे, ठीक है भैया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ जाएंगी। जब ये पूरा प्रिंट हो जाएगा तब हम ऐसा आउट एक ब्लैंक चलाएंगे क्योंकि लाइन चेंज करनी है। ऐसा आउट हमने यहाँ क्या कर दिया, सम प्रिंट कर दिया। ओके, हमने यहाँ क्या प्रिंट कर दिया, सम इक्वल्स, कहाँ से मिलेगी ये वैल्यू, सम से मिल जाएगी, डन। ठीक है, तो एक तो तरीका है मैं फॉर ईच लूप यूज कर लूं, एक तरीका है मैं फॉर ईच लूप यूज कर लूं। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं, हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो पहले तो देखिए ये ट्रू 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 और फॉल्स क्यों आया मेरे 6 एलिमेंट के लिए। ये देखिए ये मेरा सेट प्रिंट हो गया, ये मेरा सेट प्रिंट हो गया, ये मेरे फॉर ईच से प्रिंटिंग हो गई, ये मेरी क्या हो गई, फॉर ईच से प्रिंटिंग हो गई है। फिर मेरे को क्या मिल गया, मेरा सम मिल गया, मतलब मैंने हर एक एलिमेंट को प्रोसेस कर लिया है, मैंने हर एक एलिमेंट को प्रोसेस कर लिया है। ओके, नाउ ये तो हमने क्या किया, फॉर ईच से किया। अगर हमको इटरेटर से करना होता है ना, ऐसा आउट यूजिंग इटरेटर, अगर मुझे इटरेटर से करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, इटरेटर से करना होगा तो कैसे करूंगा। फर्स्ट आई नीड टू, ओके, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू गेट इटरेटर ऑन सेट। जो सेट है मेरा उस पर मुझे क्या चाहिए, इटरेटर चाहिए, उस पर क्या चाहिए मुझे, इटरेटर चाहिए है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इटरेटर का एक रेफरेंस ले लेता हूँ। इटरेटर भी क्या बोलता है, हमें बता दें किस टाइप के एलिमेंट है। हमने बोला भैया इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के एलिमेंट हैं। ओके मतलब इटरेटर का ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप के एलिमेंट को प्रोसेस कर रहा है, हमने उसका नाम दिया आईटीआर। और कल हमने मेथड देखा था कि सेट क्लास के अंदर मेथड है क्या भैया, इटरेटर। तो हमको इससे क्या मिल जाएगा भैया, इटरेटर मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, इटरेटर मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस इटरेटर में चेक करना है कि भैया और ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम यूज करेंगे इटरेटर डॉट हैश नेक्स्ट। अगर अगला एलिमेंट है तो हमें क्या करना है, हमें तो सम प्रोवाइड करना है ना, हमें तो सम करना है भैया, हम सम को रीसेट कर दे, सम इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, चले सम नहीं करते हैं, सिर्फ प्रिंट कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। हमको इटरेटर का नेक्स्ट मिल गया, तो हमने बोला एस आउट ITR डॉट नेक्स्ट, अगला एलिमेंट यहाँ से नेक्स्ट से मिल जाएगा हमको, इटरेटर डॉट नेक्स्ट से। और हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ वही कॉमा सेपरेटेड का काम कर दे रहे हैं, कॉमा के बाद स्पेस और प्रिंट एलएन की जगह प्रिंट कर दे रहे हैं भैया, डन। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, मतलब प्रोसेस एलिमेंट बाय एलिमेंट लिस्ट प्रिंट हो रही है। हमने ऐसा आउट कर दिया एक ब्लैंक की लाइन चेंज हो जाए। तो भैया ये हमने क्या कर लिया, हमने फॉर ईच और इटरेटर से
लिस्ट को एक्सेस कर लिया, एलिमेंट बाय एलिमेंट हमने एक्सेस कर लिया है। चलिए देख लेते हैं एक बार आउटपुट। चलिए पहले तो एलिमेंट ऐड हुए, फिर सेट प्रिंट हुआ, फिर फॉर ईच से हुआ। अब क्या हो रहा है, यूजिंग इटरेटर प्रिंट हो रहा है। सेम चीज इटरेटर के ऑब्जेक्ट को भी सेम ही फ्लो मिल रहा है, मतलब इटरेटर के ऑब्जेक्ट को जो वैल्यू मिलती है वही फॉर ईच में जाती है, और वही जब आप एस आउट से प्रिंट करते हैं तो उसमें जाती है। तो ये तो बात हो गई भैया ऐड, ऐड की बात हो गई, ट्रैवर्सिंग की बात हो गई, ऐड की बात हो गई, ट्रैवर्सिंग की बात हो गई। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज एड ऑल। ठीक है भैया, एड ऑल को यूज करते हैं। एड ऑल को यूज करना है तो हमें दूसरा कलेक्शन चाहिए, तो हम दूसरा कलेक्शन बना लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिएटिंग एरे लिस्ट, एरे लिस्ट बना लेते हैं भैया। एरे लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट का इंटरफेस लेते हैं, लिस्ट, और लिस्ट को बोलते हैं किस टाइप की होनी चाहिए, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर की एक लिस्ट बनाई हमने, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है भैया, ये नई एरे लिस्ट बन गई है, नई एरे लिस्ट बन गई है। अब हमको क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज इट बाय रैंडम वैल्यूज। तो रैंडम वैल्यूज से कैसे करेंगे, हमने पिछली बार भी बनाई थी, एक फॉर आई लूप ले लेंगे, 10 एलिमेंट ले लेते हैं इस लिस्ट के अंदर, कि हमको 10 एलिमेंट चाहिए हैं। क्या करेंगे बेटा, लिस्ट डॉट ऐड कॉल करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड कॉल करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, पहले तो टाइप कास्टिंग लगा देते हैं इंट, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम डबल निकाल के देता है आपको। तो हमने बोला मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी डबल डिजिट में। हमारी लिस्ट बन के तैयार है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट प्रिंट कर दे रहे हैं। हमने ये क्या किया, लिस्ट को प्रिंट कर दिया, हमने लिस्ट को प्रिंट कर दिया है भैया, है ना। लिस्ट को प्रिंट करना है, लिस्ट का नाम एस आउट के अंदर लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इनटू सेट, लिस्ट के सारे एलिमेंट को सेट में डाल रहे हैं। कैसे डालेंगे भैया, सेट डॉट एड ऑल। अब ये देखिए, एड ऑल बोलता है कि आप ऐसा कलेक्शन डाल दें जिसका जो टाइप होगा वो या तो इंटीजर होगा या इंटीजर का सब टाइप होगा। तो हमने बोला ठीक है, हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन है लिस्ट जो कि इंटीजर का सब टाइप है, जो कि इंटीजर का सब टाइप है। अब क्या हो जाएगा भैया, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, किसमें, लिस्ट के सारे एलिमेंट सेट में ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा आउट करके देख लेते हैं, लिस्ट तो प्रिंट है, हम सेट भी प्रिंट कर देते हैं। सेट, हमने सेट प्रिंट किया, कैसे मिलेगा सेट, सेट से चलें इतने कोड को एनालाइज करके देखते हैं। देखिए ये जो कोड है ये 10 रैंडम वैल्यूज हमारी लिस्ट में ऐड कर देगा, 10 रैंडम वैल्यू हमारी लिस्ट में ऐड कर देगा। चलिए देखें आउटपुट। ओके गाइस, तो ये हमारी लिस्ट, ये 10 रैंडम वैल्यू है जो हमारी लिस्ट में ऐड हो गई। 36, 43, 23, 58, 25, 80, 82, 90, 743। अब यहाँ देखिए 43 दो बार आ गया है, तो लिस्ट में तो दो बार अलाउड है, लेकिन सेट के अंदर देखिएगा, सेट के अंदर एक ही बार है, सेट के अंदर एक ही बार आया, ये रहा 43। दूसरी बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया। तो सेट की ये क्वालिटी है, सेट की क्या ये खासियत है। पहले कितने एलिमेंट थे, पहले कितने एलिमेंट थे, 18, 25, 53। तो ये कोई एलिमेंट और रिपीट हो रहा है, नहीं, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम सेट का साइज देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि एक 43 रिपीट था इसलिए वो डिस्कार्ड हो गया। तो भैया ये हुआ, हमने क्या किया, एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन को इनिशियलाइज कर दिया, एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, मतलब इनिशियलाइज इन एसेंस ऐड कर दिया एक कलेक्शन को दूसरे में। और सेट क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं बोल भेजता है, तो उसने इसके भी एलिमेंट को ऐड कर लिया, और there's no specific order, there's no specific order. Okay, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गई ऐड करने की बात और प्रिंट करने की। अब हम देख लेते हैं रिमूव करने की। रिमूव करने की तो सेट से रिमूव कैसे करते हैं, तो भैया सेट से रिमूव करना है तो सेट डॉट रिमूव, और ये देखिए एक्सपेक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट, ये एक्सेप्ट करता है एक ऑब्जेक्ट। अब मैं एक ऑब्जेक्ट देता हूँ इसको
1 2 3 4 जो कि हमारे सेट में मौजूद नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूं, इसको एस आउट करके देख लूं, एस आउट किया मैंने इसको, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे सेट में है ही नहीं, तो ये फॉल्स वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पे। एक और एस आउट करते हैं, रिमूव करने की कोशिश, सेट डॉट रिमूव, और इस बार हम बोल देते हैं तुम 50 को, जो हमने मैनुअली ऐड किया वो नंबर तो हमको मालूम है, 53 को रिमूव कर दो। किसको रिमूव कर दो, 53 को। तो क्या होगा, एक बार हमको ट्रू मिलेगी, एक बार फॉल्स मिलेगी। हम सेट को फिर से प्रिंट कर लेते हैं, सेट को फिर से प्रिंट कर लेते हैं भैया, ये हमारा सेट है, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये हमारा सेट प्रिंट हुआ था, इसके बाद के आउटपुट में हमारा कंसर्न है। तो भैया 1 1 2 3 4 तो था नहीं सेट में, तो वो डिलीट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए फॉल्स, जो था वो डिलीट हो गया, उसके लिए ट्रू। अब ये देखिए 53 गायब हो गया, ये 53 जो था ये यहाँ से गायब हो चुका है, 53 यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। तो 53 आपको क्या हो गया, अब दोबारा नहीं मिलेगा, 53 आपको क्या होगा, अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई रिमूव की फंक्शनैलिटी, ये तो हो गई रिमूव की फंक्शनैलिटी। सेट डॉट, देखिए रिटेन ऑल, रिमूव ऑल, दूसरा कलेक्शन भेज दीजिए, रिटेन करा दीजिए, रिमूव करा दीजिए। ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू चेक, ओके, ऑल दिस थिंग यू हैव टू चेक, ओके। सो देयर इज अ direct method to convert your set into एरे। चलें वो देख लेते हैं ना भैया, एरे, सेट को डायरेक्टली एरे में कन्वर्ट करना। पहले तो ये बताइए सेट से किस टाइप की वैल्यू आने वाली है। सेट से आने वाली है भैया इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो एक इंटीजर एरे बना ले, ARR, ठीक है, और इसको क्या कर दें, सेट डॉट टू एरे। अब ये देखिए टू एरे, हमने बोल दिया कि भैया टू कर दो, टू एरे कर दो। यह एक ऑब्जेक्ट की एरर रिटर्न करता है, पहले तो एक स्पेसिफिक टाइप की एरर रिटर्न करता है, ठीक। तो व्हाट वी आर डूइंग वी आर यूजिंग दिस। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट की एरे, और हम किस में उसको कास्ट कर रहे हैं, इंटीजर में। तो हमको कास्टिंग करनी पड़ेगी, हमको इंटीजर एरे मिल जाएगी, हमको इंटीजर एरे मिल जाएगी, ओके। चलिए हम इस एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं भैया। एरे को कैसे प्रिंट करते हैं, एस आउट एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। तो कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो, कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो, तो आप यूज कर सकते हैं भैया इसको, टू एरे को सेट से टू एरे डायरेक्टली बन जाता है। चले एक आखिरी आउटपुट देखते हैं, फिर कोड दूसरे इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे, ओके। कैन नॉट कास्ट, ऑब्जेक्ट से इंटीजर में कास्टिंग नहीं करने दे रहा है, वो ऑब्जेक्ट से इंटीजर में कास्टिंग नहीं करने दे रहा है। वो बोलता है कि इंटीजर एरे में मैं कास्ट करने नहीं दूंगा ऑब्जेक्ट से, ओके। तो अब आपको कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे इंटीजर एरे की जगह जनरल ऑब्जेक्ट एरे ले सकते हैं, जनरल ऑब्जेक्ट एरे ले सकते हैं भैया, ओके। आपने ऑब्जेक्ट की एरे बना ली और ये कास्टिंग को यहाँ से हटा दिया, सीधे आपको ऑब्जेक्ट एरे मिल रही है, ओके। तो आप ऑब्जेक्ट एरे के थ्रू ये काम कर सकते हैं, ओके। तो उसने मुझे डाउन कास्ट नहीं करने दिया। एरे में भी देख लीजिए सेम एलिमेंट आपके एज एन एरे आ गए, आप जिसको इंडेक्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, ओके भैया। तो ये तो बात हुई हमारी इस डेमोन्स्ट्रेशन की, जहां हमने रिमूव देखा, एड ऑल देखा, देयर आर सर्टेन कंटेंट्स हैं, आप कंटेंट्स चेक कर सकते हैं कि सेट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट है कि नहीं। देन आप रिटेन ऑल रिमूव ऑल के लिए फंक्शनैलिटी इसी कोड पे लिख लीजिएगा। आई विल शेयर दिस कोड ऑन गिटहब, ओके। चलें, तो ये तो बात हो गई सेट के डेमो की। अब हम सेट के कुछ ऑपरेशन होते हैं स्पेसिफिक, उनकी बात कर लेते हैं। हम उसके लिए एक नई क्लास बनाते हैं, सेट डेमो 1, ओके। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन,
यूनियन ऑपरेशन होता है ना भैया सेट पे। तो क्या करेंगे, मेन मेथड में हम बनाएंगे सेट। सेट हम इंटीजर टाइप का ही बनाएंगे भैया, सेट हम इंटीजर टाइप का बनाएंगे। सेट को बोलेंगे S1, S1 को बोलेंगे न्यू हैश सेट। ठीक है, हमने एक हैश सेट बना लिया नया। फिर हम बोलते हैं एक और हमको चाहिए इंटीजर वाला हैश सेट। हमने बोला S2, हम S1 और S2 का क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे। S1 और S2 का क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे। ठीक है भैया, एक और एक सेट बना लेते हैं जो कि होल्ड करेगा रिजल्ट को, यूनियन यूनियन बोल देते हैं उसको, इंटीजर। हमने ये यूनियन बनाया और यहाँ क्या कर दिया, इसको भी एक नया हैश सेट ही बोल दिया कि ये भी एक नया हैश सेट है। नाउ व्हाट विल डू, वी विल ऐड एलिमेंट, ऐड एलिमेंट्स इन S1 एंड S2। चलिए अब ये हम मैनुअली नहीं करेंगे, हम अपना फॉर आई लूप यूज करते हैं जो रैंडम वैल्यू के साथ। तो हम 5 रैंडम वैल्यू के साथ फॉर आई लूप यूज कर लेंगे। S1 डॉट ऐड, ठीक है भैया, इंट मैथ डॉट रैंडम इनटू 100, डन। और सेम वैल्यू हम यूज कर लेंगे, सेम चीज हम यूज कर लेंगे S2 के लिए भी। तो अब भैया हमारा S1 S2 बन के रेडी है, हम इनको प्रिंट कर लेंगे एस आउट S1 एस आउट S2, डन। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। अब हमको यूनियन बनाना है, यूनियन बनाना है मतलब यूनियन ऑफ S1 एंड S2। तो S1 और S2 को एक नए सेट में ऐड कर दें, यूनियन डॉट एड ऑल S1, यूनियन डॉट एड ऑल S2, S2। ठीक है भैया, और प्रिंट कर देते हैं एस आउट यूनियन इक्वल्स, क्या से मिलेगा भैया, यूनियन से मिल जाएगा हमको। कहाँ से मिल जाएगा, यूनियन से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। सो गाइस देखिए, यूनियन मतलब दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट्स आपको मिल जाए, दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट आपको मिल जाए। 49, 52, 41, 12, 79, 16, 84, 4, 38, 78 सभी यूनिक वैल्यू हैं। तो हमको ये सेट में वो सारी वैल्यूज मिल गई, ये सेट में वो सारी वैल्यू मिल गई। हम क्या करते हैं, एक रीरन करके देखते हैं, इसको रीरन करके देखते हैं, शायद हमको कुछ कॉमन डुप्लीकेट वैल्यू मिले। अभी भी हमको कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिली है, स्टिल वी डू नॉट हैव एनी डुप्लीकेट वैल्यू। लेट्स सी नाउ, वी डू नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू, वी डू नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। पर यहाँ पे क्या हुआ है, पहले सेट में सिर्फ 4 वैल्यू है। ऐसा क्यों होगा, जब ये वैल्यूज जनरेट हुई होंगी, जब ये वैल्यूज जनरेट हुई होंगी, कोई ना कोई वैल्यू रिपीट हो गई होगी और सेट डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं करने देता। ठीक है बेटा, ओके। सो ये यूनियन क्या है, दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट हैं। ये क्या है, यूनियन दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट रिपीट होता तो उसकी एक ही कॉपी आती, दूसरी कॉपी नहीं आती। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया क्या, आपका यूनियन का ऑपरेशन। यूनियन का ऑपरेशन ऐसे इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं आप, ऐसे इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, कॉमन मेंबर दोनों सेट के इंटरसेक्शन, यही होता है ना, दोनों सेट के कॉमन मेंबर। प्लीज कैन एनीवन, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे भैया, चलें दैट इज अप टू यू, कैसे निकालेंगे दैट इज टोटली अप टू यू। तो बेटा ये तो बात हुई हमारे हमारे सेट के कुछ बेसिक ऑपरेशन की। अब हम क्या करते हैं, हम सेट और लिस्ट के लिए कस्टम क्लास बनाते हैं, है ना, यूजर डिफाइंड क्लास। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक यूजर डिफाइंड क्लास। उससे पहले हम पैकेज बनाते हैं, हम उसको लिखते हैं डेटा बीन। अब ये यूजर डिफाइंड क्लास है, जो यूजर डिफाइंड क्लास जो है, इसको आप बहुत सारे नामों से जानते हो, यूजर डिफाइंड, कस्टम क्लास, या इम्प्लीमेंटेशन क्लास, या सॉरी डेफिनेशन क्लास। ओके, सो डेफिनेशन बोल दें, यूजर डिफाइंड बोल दें, या कस्टम बोल दें, बात वही है कि वो स्टूडेंट क्लास जिसके पास फील्ड है, गेटर सेटर है, टू स्ट्रिंग है। ओके, सो हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक स्टूडेंट क्लास बनाने जा रहे हैं। हमने स्टूडेंट क्लास बनाई और इस स्टूडेंट क्लास के पास क्या है, 2 प्राइवेट फील्ड है, प्राइवेट इंट रोल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम।
ओके। और इनके गेटर सेटर है भैया, हम जनरेट करने जा रहे हैं गेटर सेटर। हमने क्या किया देखिए, गेटर सेटर जनरेट कर लिया। और हम क्या कर रहे हैं अब, हम क्या कर रहे हैं, एक टू स्ट्रिंग भी चाहिए कि जब हम हमारे सेट को, इस क्लास के लिए हम एक सेट बनाएंगे और जब उस सेट को हम प्रिंट करें तो ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस आने की जगह वैल्यूज आ जाए, ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस आने की जगह वैल्यूज आ जाए। नाउ हमारी स्टूडेंट क्लास रेडी है, हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर करने के लिए एक सेट बनाएंगे। तो हम सेट पे जाते हैं, हमने सेट पे एक नया सेट पैकेज में एक नई क्लास बनाई, स्टूडेंट सेट। ओके, स्टूडेंट सेट बनाया। ये क्लास क्या करने वाली है भैया, ये क्लास क्या करने वाली है, क्रिएटिंग अ सेट टू स्टोर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ओके, so what we are doing, we are creating a set to store student object। हमने इस क्लास में बोला कि हमारे पास मेन मेथड है, हमने मेन मेथड में देखिए अब हम सेट बनाएंगे। ओके, हम पहले एक सेट बना लेते हैं। तो हमने सेट इंपोर्ट किया, सेट को क्या बोला, अब देखिए टाइप बताना पड़ेगा। इससे पहले हम इंटीजर बना रहे थे, अब हम क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट। स्टूडेंट का पैकेज भी बताना पड़ेगा। हमने बोला डेटा बीन का जो स्टूडेंट है उसका सेट बनाना है, हमने इसको बोला स्टूडेंट सेट। हमने इसको क्या बोला, स्टूडेंट सेट। ओके, और हमने इसको कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया किसका, हैश सेट का। हमने इनिशियलाइज कर दिया इसको, इस रेफरेंस को हैश सेट से। अब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं तो हमें स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ओके, s1 डॉट सेट रोल नंबर 11, s1 डॉट सेट नेम Ramesh। Now we are creating one more student, student s2 equals to new student, s2 dot set roll number 20, or I will say 54, s2 dot set name विकास। ओके, अब हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट s3। ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट रहेगा बेटा, ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट रहेगा। डुप्लीकेट इन ए सेंस कि हमने क्या बोला, s3 डॉट s3 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, s3 डॉट सेट रोल नंबर हमने बोला 11, रमेश का ही रोल नंबर, और नाम भी वही देने वाले हैं, s3 डॉट सेट नेम हमने बोला रमेश। तो हमने नाम और रोल नंबर दोनों सेम दे दिए। तो s1 और s3 क्या हो गए, s3 क्या हो गए, सिमिलर ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ऐड करने जा रहे हैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को अपने सेट में। ठीक है, एडिंग above ऑब्जेक्ट इनटू सेट। कैसे करेंगे भैया, एस आउट के अंदर लिखेंगे, एस आउट सेट डॉट ऐड। ओके, सेट है नहीं यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट सेट डॉट ऐड। क्या ऐड करना है हमको, स्टूडेंट s1। ठीक है बेटा, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टू टाइम पेस्टिंग दिस स्टेटमेंट कि हमको रिपीटेड टास्क है, डन। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट ऐड हो जाएंगे, तीनों स्टेटमेंट हमने लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग दी सेट, प्रिंटिंग दी सेट। ओके, एस आउट स्टूडेंट सेट हमने ये प्रिंट कर लिया। सी, डुप्लीकेट वैल्यू सेट में एंटर नहीं होती है। चलें इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट एनालाइज करेंगे, इसका आउटपुट एनालाइज करेंगे। तो बेटा ये देखिए तीनों वैल्यू ऐड हो गई जबकि होनी नहीं थी। ओके, ये देखिए पहली वैल्यू s1 ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, s2 ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। जब s3 आया तो इसको ऐड नहीं होना था क्योंकि s1 और s3 इक्वल है, लेकिन s3 भी देखिए जाके ऐड हो गया, s3 भी जाके ऐड हो गया। वाई, वाई ऐसा क्यों हुआ, सेट तो डुप्लीकेट को कंट्रोल कर देता है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वी डिड नॉट supplied any code to check for
स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वलिटी। स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी को चेक करने के लिए हमने कोई भी कोड नहीं दिया है, कोई भी कोड नहीं दिया है। तो होता क्या है, डिफॉल्टली क्या करता है, जब भी किसी सेट में आप ऐड मेथड को कॉल करते हो तो ये ऐड मेथड क्या करता है, जिस भी टाइप का सेट होगा और जिस भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहा हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हैश कोड को कॉल करता है। ठीक है, हैश कोड मेथड को कॉल करता है टू गेट हैश कोड। उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड लेने के लिए हैश कोड को कॉल करता है। ओके, सेकेंडली व्हेन इट फाइंड hash code of newly added object with any existing object, it will call equals method। क्या करता है भैया, equals method को कॉल करता है to check for इक्वलिटी। अभी तो हमने हमारे स्टूडेंट क्लास में ना हैश कोड डिफाइन किया है ना इक्वल्स डिफाइन किया है, इसलिए हमारी क्लास का ये डुप्लीकेट मेंबर क्या हो गया, ऐड हो गया है। इसलिए डुप्लीकेट मेंबर क्या हुआ, ऐड हो गया। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओवरराइड इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड इन आवर स्टूडेंट क्लास। चलें देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। हम स्टूडेंट क्लास पे गए, हमने पहले भी देखा है, हम जनरेट करने जा रहे हैं भैया, है ना। ठीक है, हमने बोला हमको क्या चाहिए, इक्वल सेट को दोनों चाहिए, हमने ये कोड को जनरेट कर लिया। तो ये हमारा इक्वल्स का कोड है भैया, इसको कॉल करने वाला है सेट। हैश कोड को भी सेट कॉल करेगा, इक्वल्स को कब करेगा, जब दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड सिमिलर मिलेगा। तो चलें लिख लेते हैं एक स्टेटमेंट इसमें, इक्वल्स ये तब प्रिंट होगा जब इक्वल्स कॉल करेगा। एक और यहाँ भी लिख लेते हैं, जब भी हैश कोड कॉल करेगा तो यह स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा भैया, हैश कोड। सी नाउ अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग द कोड। सेम स्टूडेंट सेट का जो कोड है इसी को एग्जीक्यूट करेंगे। हर एक कॉल पे हैश कोड कॉल होगा, S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए। देखिए सुसी, जब S1 ऐड हुआ, जब S1 ऐड होने गया तो हैश कोड कॉल हुआ वैल्यू आई S1 के हैश कोड की, ट्रू ऐड हो गया। जब S2 को हैश कोड कॉल हुआ S2 का, क्योंकि जब S2 ऐड होने गया S2 का हैश कोड कॉल हुआ और वो भी ऐड हो गया। फिर कॉल हुआ S3 का हैश कोड, S3 का हैश कोड और S1 का हैश कोड सिमिलर था हैश कोड। तो क्या हुआ, उसने इक्वल्स मेथड को कॉल किया और इक्वल्स मेथड ने बोला ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, S1 एंड S3 आर इक्वल। इक्वल है तो वो डुप्लीकेट है, तो वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं करेगा, इसलिए फॉल्स। अब नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे क्या है, दो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट ऐड हुए, जबकि इससे पहले क्या हो रहे थे, तीन। सो whenever we are processing a custom class set, whenever we are processing or creating a set for custom class, that is our responsibility to provide how to check the equality. The set will definitely call, the set add method will call the hash code as well as the equals method of the uh, class for which the set is created। ठीक है भैया, तो उसके सेट को वो क्या करेगा, ऐड और इक्वल्स को कॉल करेगा, ऐड मेथड इक्वल्स और हैश कोड को कॉल करेगा। ठीक है, सो now what you have to do, you have to be aware of how to write this code. This hash code you must be able to write anytime, this equals you must be able to write anytime। ओके, तो भैया ये तो बात हो गई किसकी, कस्टम क्लास के सेट के इम्प्लीमेंटेशन की। नाउ हमने एक और बात कही थी आपसे कि हम एक और क्लास बनाएंगे एरे लिस्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, तो हम एक लिस्ट पैकेज के अंदर एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट लिस्ट। यहां हम क्या करने वाले हैं भैया, क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ओके भैया, ठीक है। तो अब एरे लिस्ट कैसे बनाएंगे, मेन मेथड बना लेते हैं भैया। मेन मेथड बनाया हमने, मेन मेथड में हमने लिस्ट का रेफरेंस ले लिया, लिस्ट,
और लिस्ट को बोल दिया किस टाइप की बनेगी, स्टूडेंट की लिस्ट बनेगी, और इसको नाम दिया स्टूडेंट लिस्ट। न्यू क्या बनाई भैया, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट बना ली हमने, एरे लिस्ट बन गई है। अब हम क्या करते हैं, हमको स्टूडेंट के 3 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ से सेट से तीनों ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेते हैं भैया ना। 3 ऑब्जेक्ट हमने क्या किए, कॉपी कर लिए सेट से। So now our objects are ready. Now our objects are ready, S1, S2, S3. अब लिस्ट तो डुप्लीकेट को एंटर कर लेती है, तो हम क्या करते हैं, एस आउट स्टूडेंट लिस्ट डॉट एड S1, S2, S3। ठीक है भैया, हमने क्या किया, S1, S2, S3 तीनों को ऐड कर दिया। Now what we are doing, we are printing the list, स्टूडेंट लिस्ट हमने क्या करी, प्रिंट कर दी। तो देख लेते हैं भैया कि ये स्टूडेंट लिस्ट में क्या क्या वैल्यू आ रही है। डुप्लीकेट को डिस्कार्ड तो नहीं कर रही कहीं ये लिस्ट कभी नहीं करती डुप्लीकेट को डिस्कार्ड। सो ये देखिए तीनों एलिमेंट कॉल, तीनों ऑब्जेक्ट ऐड हो गए, क्योंकि डुप्लीकेट से लिस्ट को फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो इन दिस वे आप क्या बनाएंगे, स्टूडेंट की लिस्ट। बट नाउ आई वांट you to arrange this list as per रोल नंबर पे मुझे इसे अरेंज करना है। व्हाट शुड आई डू। तो भैया देखो एक मेथड होता है हमारे पास कलेक्शन क्लास का, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ठीक है भैया, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। और ये क्या करता है, ये किसी भी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमने यहाँ भेजा स्टूडेंट लिस्ट। ओके, बट ये क्या दे रहा है हमें, एरर। ये बोल रहा है कि जो आपकी रिक्वायर्ड टाइप है, आपने जो टाइप प्रोवाइड किया है लिस्ट का, दिस टाइप इज नॉट कन्फर्म टू द कंपेरेबल। मतलब ये जो टाइप आपने भेजा है, ये लिस्ट है स्टूडेंट की, और स्टूडेंट कंपेरेबल का चाइल्ड नहीं है। क्या नहीं है, कंपेरेबल इंटरफेस का चाइल्ड नहीं है। तो हम इस पे ये सॉर्टिंग मेथड नहीं लगा सकते। इन अदर वे, दो ऑब्जेक्ट की ऑर्डरिंग करने का मेथड आपने डिफाइन नहीं किया है। ओके, दो ऑब्जेक्ट की ऑर्डरिंग करने का मेथड आपने डिफाइन नहीं किया है। दैट मींस इट इज सजेस्टिंग स्टूडेंट क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल एक इंटरफेस है जो कि java.lang में अवेलेबल है। इसका काम क्या है भैया, ये नेचुरल ऑर्डरिंग प्रोवाइड करता है, या आपकी क्लास को किस बेसिस पे अरेंज करना है इसको प्रोवाइड करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारी क्लास, यहाँ तो एरर आ रहा है, तो हम जाएंगे स्टूडेंट क्लास पे। स्टूडेंट क्लास पे हम क्या करेंगे, हम कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब कंपेरेबल जो है, कंपेरेबल जेनरिक और नॉन जेनरिक दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो अब हम जेनरिक फॉर्म यूज करेंगे इसका। ठीक है बेटा, कंपेरेबल को जैसे ही हम इंप्लीमेंट करते हैं, कंपाइलर हमको फोर्स करता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कंपेयर टू, उसको क्या करो, इंप्लीमेंट करो। तो हमने किया इंप्लीमेंट कंपेयर टू मेथड को। तो सिग्नेचर आइडेंटिफाई कर ले भैया, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ये जो कंपेरेबल है ये क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या चीज है, कंपेरेबल हमने जैसा पहले देखा था कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर कॉलिंग ऑब्जेक्ट ग्रेटर है तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगी। क्या रिटर्न होगी, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है भैया, कॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर स्मॉलर है तो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। और दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो जीरो रिटर्न होगा। ठीक है भैया, दोनों इक्वल हैं तो जीरो रिटर्न होगा। अब हमको किस बेसिस पे अरेंज करना है, रोल नंबर की बेसिस पे। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको अरेंज रोल नंबर की बेसिस पे। हम इस कोड को कर देंगे रिटर्न दिस डॉट गेट रोल नंबर, करेंट ऑब्जेक्ट का रोल नंबर ले आओ, माइनस ओ डॉट गेट रोल नंबर। हमने रोल नंबर पे कैलकुलेशन इसलिए लगा दी है कि रोल नंबर
अगर कॉलिंग ऑब्जेक्ट स्मॉलर हुआ तो आपको क्या मिलेगी, जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो मतलब कॉलिंग ऑब्जेक्ट स्मॉलर है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हुआ तो क्या मिलेगी भैया, कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू, और दोनों सिमिलर है तो क्या मिलेगी, 0। नाउ हम जाते हैं स्टूडेंट लिस्ट पे। सी, स्टूडेंट लिस्ट का एरर हट गया और हमारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी एज पर दी रोल नंबर, एज पर रोल नंबर। सी एस आउट सॉर्टेड एस आउट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी लिस्ट को प्रिंट कर दे रहे हैं। स्टूडेंट लिस्ट को हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। सी सॉर्टिंग हो जाएगी अपने आप। So guys, see, the highest roll number reached the end of the list. The smallest is at the beginning. 11 is the similar roll number. So एक के आगे पीछे आ जाएंगे बेटा, है ना। So in this way the sorting is performed on a list. अगर आपकी कस्टम क्लास ने कंपेरेबल इंप्लीमेंट नहीं किया है तो क्या समस्या, आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते। किस मेथड से, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट से। कलेक्शन डॉट सॉर्ट जो है दो फॉर्म में मौजूद है भैया, है ना, दो ओवरलोडेड फॉर्म में, है ना। अगर मैं लिखता हूं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, तो सी, एक तो मुझे कंपेरेटर का बिहेवियर पास करने को बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि आपकी जो क्लास है उसने क्या किया हो, उसने इम्प्लीमेंट किया हो, किसको किसको इम्प्लीमेंट किया हो भैया, कंपेरेबल को, और कंपेयर टू मेथड जो था उसका उसको ओवरराइट किया हो। ठीक है, so class you can find this code from GitHub and try practice all the rest of the method. Okay, please get this code from GitHub and try to practice. So thank you class, we'll see you in the next meeting.